اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر یہ ایک چیلنج ہے تلنگانہ کے عوام کے لیے اور ہم لوگ اس کو پھیلنے سے روکیں گے اور جو سیفٹی میجرز پریکاشنز گورنمنٹ بولے گی ہم تلنگانہ کی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کو ایکسپٹ کریں اور اس کا خیال رکھیں اور اگر ہم روک لیں گے اس کو تو ناظرین السلام علیکم IND ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات. تلنگانہ کے نمائندہ مسلم مذہبی شخصیتوں اور مختلف تنظیموں کے نمائندوں کے ایک وفد نے آج ریاستی چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کر کے CA NPR اور NRC کے خلاف ریاستی اسمبلی میں قرارداد کی منظوری پر اظہار تشکر کیا اور کہا کہ حکومت تلنگانہ کے اس اقدام سے مسلمانوں میں پائی جانے والی بے چینی دور ہوئی ہے. وفد نے جس کی قیادت صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر سونیا ویسی نے کی چیف منسٹر پر زور دیا کہ وہ 1 اپریل سے قبل NPR پر روک لگانے سے متعلق حکومت کے اقدام کا اعلان کرے. مسلمانوں کے وفد نے کرونا وائرس کے عام ہونے سے روکنے کے لیے حکومت کے اقدامات کی ستائش کی اور کہا کہ ریاست کے مسلمان حکومت کے ہر اقدام کی نہ صرف تائید کریں گے بلکہ اس پر عمل کریں گے. چنانچہ وفد نے چیف منسٹر کو بتایا کہ ریاستی مسلمانوں نے شب معراج، شب برات اور شب قدر کے موقع پر عام اجتماعات اور جلسوں کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے. نیز جمعہ کے اجتماعات کو بھی مختصر اور محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے تا وقت کے حالات بہتر نہ ہو. وفد میں شیخ الجامعہ مولانا مفتی خلیل احمد، امیر جماعت اسلامی تلنگانہ حامد محمد خان، صدر ریاستی جمعیت العلماء اسد مدنی گروپ حافظ شبیر احمد سابق MLC، امیر امارت اسلامیہ حیدرآباد مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا، کنوینر یونائٹڈ مسلم ایکشن کمیٹی رحیم الدین انصاری، صدر مجلس علماء دکن قبول پاشا قادری شتاری، صدر جمعیت العلماء ارشد مدنی گروپ مفتی غیاث الرحمان، نائب صدر تعمیر ملت ضیاء الدین نیر، کنوینر شعبہ خواتین مسلم پسند والا بورڈ ڈاکٹر اسماء زہرا، شیعہ عالم دین نثار حیدر آغا، صدر قادریہ انٹرنیشنل فاؤنڈیشن مولانا سید احمد الحسینی سعید قادری، منیر الدین مختار، عالم مصطفیٰ علی قادری اور دوسرے شامل تھے. ماہر معاشیات عامر اللہ خان نے چیف منسٹر کو کرونا وائرس سے ہونے والے معاشی نقصانات سے واقف کروایا اور کہا کہ یہ بیماری سے زیادہ جو کوہرام مچے گا وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اوکے آج ایک ڈیلیگیشن چیف منسٹر جناب کے چندر شیکھر راؤ صاحب سے ملاقات کیا ہے جس میں مفتی خلیل احمد صاحب جامعہ نظامیہ کے، حافظ پیر شبیر احمد صاحب جمعیت علماء کے، قادری صاحب قادریہ فاؤنڈیشن کے، نثار حیدر آغا صاحب، رسول حسین مشتیجی صاحب، حامد محمد خان صاحب جماعت اسلامی کے اور علی پاشا جعفر پاشا صاحب تعمیر ملت کے، ضیاء الدین نیر صاحب، مفتی غیاث صاحب انصاری صاحب جعفر اور عبد القادر صاحب تبلیغی جماعت کے، مفتی صادق محی الدین صاحب. تو ہم لوگ چیف منسٹر کا شکریہ بھی ادا کیے. CAA NPR NRC کے جو ریزولوشن پاس ہوا ہم تمام نے چیف منسٹر کا شکریہ بھی ادا کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ 1 اپریل سے پہلے حکومت تلنگانہ جو بھی قانونی اقدامات کرنا ہے اس سلسلے میں وہ اقدامات کریں گے اور ہم نے چیف منسٹر سے پورا کوآپریشن ہم نے دیا ہے جو COVID-19 کے سلسلے میں جس کی روک تھام کے لیے، اور ہم نے چیف منسٹر سے کہا کہ جو بھی اقدامات گورنمنٹ لے گی ہم اس کی تائید کریں گے کیونکہ یہ بیماری وبا ہے، وائرس ہے. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے عامر اللہ خان صاحب اور ان کی وائف محترمہ سلیمہ رضوی ان دونوں نے سب سے پہلے اس ملک میں اس کووڈ وائرس کے بارے میں لکھا. افسوس کی بات ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو نوٹس نہیں لیا. میں چاہوں گا کہ ان شارٹ عامر بھائی اس بارے میں جو چیف منسٹر کو کہا گیا ہے وہ بتائیں گے آپ کو. شکریہ اسد بھائی. ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حیدرآباد ایک ایسا شہر ہے جو اور تلنگانہ ایک ایسا اسٹیٹ جہاں پہ ابھی ہم محفوظ ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے شہر اور ہمارے اسٹیٹ میں ہم نے بہت اچھے سٹیپس شروع سے ہی لے لیے. چیف منسٹر صاحب نے خود اسمبلی میں کہا کہ یہ بڑا ایشو ہے. باقی چیف منسٹر ڈر رہے تھے کہ پینک ہو جائے گا، لیکن ہمارے چیف منسٹر نے کیا، اور اب ہم کو چاہیے کہ یہی ہم آگے لے جائیں. ہم کو یہ ضروری ہے یہ سمجھنا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ جو مہاراشٹرا میں دیکھ رہے ہیں ہم یا UP میں دیکھ رہے ہیں، یہ اب حیدرآباد میں بھی ہو سکتا ہے، تلنگانہ میں بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے ہم سب لوگوں نے یہ کہا کہ جو بھی ہو سکتا ہے
any measure that needs to be taken. Nothing is beyond our purview. We can take any measure. If we want to stop everything, if we want to stop people coming to mosques to pray, we are ready for that. It is very important for us to realize that this epidemic can just go hypertensive, and the graph can just take us anywhere, and therefore we have to be ready. The Chief Minister and the police and the municipality have started doing some work, but much more needs to be done. It will be unfortunate if even one person dies. And to stop that, everybody, all of us in this delegation, promised the Chief Minister that anything that he wants us to do, anything that he thinks we should be doing, we will do. There is nothing that stops us from stopping any public gathering in the state of Telangana, which should remain as it is, an island of peace, harmony and health in the country of India. मैं हमारे हाफिज पीर शब्बीर साहब को 2 मिनट बोलिए। देखिए, सीएम साहब से हमने एक बात कही थी कि हम 1 अप्रैल से जो हम लोग आएंगे घर पे, तो सीएम साहब ने बड़ी हमें मुतमईन नहीं किया कि हम लोग भी जाएंगे ना। जब हम नहीं भी जाना चाहते तो जो हमको टाइम है अभी सितंबर तक, तो हम जब चाहे करेंगे, एक बात। और दूसरी बात ये थी कि मैंने कल से जो है ना पूरे डिस्ट्रिक्ट में, यानी मंडलों में और तेलंगाना के मंडलों में, यहाँ तक कि जिले के अंदर और जो ना देहात में तक भी हमने ये बात पहुंचा दिया कि मसाजिदों के ताल्लुक से लोग किस तरह रहना चाहिए। ये जो बीमारी फैल रही है हमारे हाथ में, हम जितना चाहे रोक सके, सफाई कर लें तो बस मसला हल हो जाएगा। हमारे हामिद उमर खान साहब, जमात इस्लामी। आज सीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई। सबसे पहले तो जो रेजोल्यूशन पास किया गया उसका शुक्रिया अदा किया गया, और फिर उनसे ये भी ख्वाहिश की गई कि जल्द से जल्द वो एनपीआर पर स्टे लगाने के लिए जीओ भी जारी करें। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ जीओ ही जारी नहीं करूंगा, बल्कि जिस तरह 25 दिसंबर 2019 को हमने कहा था कि बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हम तमाम ही हम ख्याल चीफ मिनिस्टर्स और तमाम लोगों को बुलाकर हैदराबाद में करेंगे, तो हमने उसका शुक्रिया अदा किया और वो बहुत उस सिलसिले में एक्टिव हैं और पॉजिटिव हैं। फिर ये वायरस के सिलसिले में हमने कहा कि हमारा पूरा ताउन रहेगा और क्या इक़दामात हमारे तरफ से किए जाने वाले हैं, हमने कुछ रिटर्न के अंदर भी उनको दिया है, और वक्फ बोर्ड क्या करना चाहिए वो भी कुछ रिटर्न में उनको दिया है हमने। तो इस तरह आज की ये मीटिंग बहुत ही फ्रूटफुल रही। देखिए, आज हमारी इस मीटिंग में तमाम उलमा और तमाम मशाइख हज़रात, तमाम तंजीमों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की सताइश की गई और भरपूर ताउन का वादा किया गया। और इस सिलसिले में हम शुक्रिया अदा किए। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है ये CAA वगैरह के बारे में जो कानून मंजूर किया उसका शुक्रिया अदा किए, और इस बीमारी की रोकथाम के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसमें भरपूर का ताउन का हमने वादा किया है। इंशाअल्लाह हम सब ताउन करेंगे। जाफर पाशा। अस्सलाम वालेकुम। आज दोनों वायरसों के सिलसिले में हमारे सीएम साहब से गुफ्तगू हुई। एक मरकज़ का वायरस और एक जो बीमारी का वायरस फैला है, ये दोनों वायरसों के सिलसिले में हमारे सीएम साहब ने हमें इत्मीनान दिलाया है, और हम तमाम शादी खाने वालों को और तमाम ऐसे लोग जो अपने वक्त को बेकार कामों में गुजार रहे हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें और शादी खानों में भी ज़्यादा वक्त अपना मत गुजारें। और इसी के साथ इंशाअल्लाह कल जुमे में भी हमने ये तय किया है कि मुख्तसर अरबी खुतबा होगा और फिर नमाज होगी, ज़्यादा वक्त उसमें नहीं दिया जाएगा, ताकि लोग, हाँ, ये भी गुजारिश की गई है कि साथ वज़ू कर घर से वज़ू करके निकले और अपनी जमा सुन्नतें भी अदा कर ले, अपने साथ जाने वाज भी ला ले। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमने सबसे पहले NRC और दीगर सिया क़वानीन के ताल्लुक़ से असम्बली में चीफ मिनिस्टर साहब ने जो करारदाद मंजूर की है उसकी हमने सिताइश की और उसका खैर मक़दम किया। और मैं इसके साथ साथ जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, ये दोनों कायदीन की जो है सिताइश करता हूँ
کہ ایسے سیاہ قوانین کے تعلق سے جرأت مندانہ اقدام کرتے ہوئے جو انہوں نے اس میں جو ہے نمائندگی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. Dr. Asma Zahra, she is the woman in charge of All India Muslim Personal Law Board. She is a doctor by profession also. We met CM for two important things. First of all, we wanted to thank him for the resolution passed in the Telangana State Assembly. It was a relief for all the women across Telangana because NPR exercise itself created a lot of stress and tension in many of the women. So we congratulated him for the resolution which has been very historic and it has a huge impact across. Secondly, we extended our support from the community regarding whatever social religious gatherings that are going to be there. The community is standing with the leadership of the Chief Minister, Mr. KCR, to support and to stop COVID-19, and that's the assurance we have given him. Adab, I'm Ilahi Hibtullah, I'm a film producer, and as you know, we met the Chief Minister today to thank him for making us feel proud as Hyderabadis, to say that we will not let religion come between us to live as proud citizens of this country. Second was, of course, COVID. We have stopped the shooting of our film because it's very, very dangerous that 150, 160 people get together every day, ek jagah pe, nahi malum kahan se aa rahe, or, you know, bichare, we don't know what we're dealing with. So, and we have stopped the shooting, but we have ensured all our daily wage workers that they will get their payment. It's not like आज shooting बंद हुई तो उन लोगों को कल से तनख्वाह नहीं मिलेंगी, सबको तनख्वाह मिलेंगी, सबको उनके daily wages मिलेंगे. And the Chief Minister has assured us कि खुदा ना खास्ता अगर वो वक्त हैदराबाद में आया, तेलंगाना में आया, तो the state will support daily workers as they should. Thank you. अब्दुल खादर साहब तबलीगी जमात के जिम्मेदारों में से हैं, वो भी एक दो लफ्ज़ बोले. जी, अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो है चीफ मिनिस्टर साहब की को बहुत मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने एक बहुत जो है बड़ा कदम उठाया है, और आगे भी हम उम्मीद रखते हैं कि वो आगे की भी ऐसे मुश्किलात में वो कदम उठाकर जो है सारे तेलंगाना के लोगों को सहूलत पहुंचाएंगे. दूसरी बात ये है कि जो है कानूनी जो सहूलतें हमको दी हैं, इससे जो हमारे बड़े अकाबरीन निज़ामुद्दीन नई दिल्ली के जो जिम्मेदार हैं वो बहुत मुतमईन हैं कि हमको बहुत सारी ये जो है कानूनी सहूलतें हमको यहाँ तेलंगाना के अंदर मिलती है. हमारे निसार आगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुल शिया मजलिस उलमा ज़ाकिरीन की तरफ से हमने ये ताउन के लिए कहा है कि जो कुछ इक़दाम आप उठाएंगे हम उसको इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे, और हमने कहा कि कम से कम ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए, बसेस उसमें रोक लगाई जाए ताकि लोग अपने अपने घरों में रहे. और हमने शुक्रिया भी अदा किया है कि सीए एनआरसी एनपीआर के लिए जो आपने इक़दाम उठाया. ज़ियाउद्दीन नैयर साहब जो है वाइस प्रेसिडेंट तामीर मिलत. आज केसीआर से जो हमारी मुलाकात हुई, शहर हैदराबाद के नामवर उलमा इकराम मशाइख़ निज़ाम ने शिरकत की, और हम तहे दिल से केसीआर के शुक्रगुजार हैं, और उन जैसे सेकुलर नज़रियात को रखने वाले के लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं कि सारे मुल्क में इस सेकुलरिज्म का जो है बोलबाला होने की ज़रूरत है, वरना फिर खबरस्त ताकतें कोशिश ये कर रही हैं कि मुसलमानों के वजूद को ख़त्म किया जाए. मुफ्ती ग़ा साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमारे बैरिस्टर साहब की तवज्जो के नतीजे में मशाइखीन और उलमा इकराम का वफ़द सीएम की खिदमत में हाजिर हुआ, और उनके जो इक़दामात हैं सीए एनआरसी और एमपीआर के बारे में, उस पर उनके किरदार पर शुक्रिया अदा किया गया, इसलिए कि हमारे मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ और इसकी बका इस मुल्क के सेकुलर किरदार पर मुनहसिर है. ये पहली मरतबा दस्तूर पे हमला हुआ था, लेकिन इस सिलसिले में सीएम साहब की कोशिशें काबिल मुबारकबाद हैं. दूसरे कोरोना के सिलसिले में हुकूमत जो इक़दामात कर रही है हम उसके बिल्कुल साथ हैं, और हमने भी कुछ मशवरे दिए हैं इस मूज़ी मर्ज़ से अपनी रियासत के आवाम को बचाने के लिए. उम्मीद है कि सीएम साहब उसकी तरफ भी तवज्जो देंगे. जनाब खादरी साहब. हमने सीएम साहब को मुबारकबाद पेश की जो
रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके साथ कोरोना वायरस के सिलसिले में हमने उनको बताया कि अंजुमन क़ादरिया का जो सालाना मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जलसा होता है, जो कि 1952 से हर साल जो मुनक़द होता है खिलवत मैदान पर, इस जलसे को हमने मनसूख किया है सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से। ये हमने उनको इत्तला दी और सीएम साहब से ख्वाहिश की कि ये वायरस की वजह से जो भी मुतासरीन होंगे गुरबा, उनका ख्याल रखा जाए। थैंक यू बहुत बहुत। और हम तमाम तेलंगाना के अवाम से अपील कर रहे हैं कि ये कोविड-19 के लिए पब्लिक को कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर, ये एक चैलेंज है तेलंगाना के अवाम के लिए और हम लोग इसको फैलने से रोकेंगे और जो जो सेफ्टी मेजर्स प्रिकॉशंस गवर्नमेंट बोलेगी, हम तेलंगाना की अवाम से अपील करते हैं कि वो उसको एक्सेप्ट करें और उसका ख्याल रखें और अगर हम रोक लेंगे इसको तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर, ये एक चैलेंज भी है तेलंगाना के अवाम के लिए कोविड-19, और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला इसको रोकेंगे। और इसका ये सब जानते हैं कि हाईली इन्फेक्शियस है और इसीलिए आप देख रहे कि इस्लामिक कैलेंडर में 2 अहम रातें होती हैं, 3, इसमें शब मेराज है और शब बारात है। इस सिलसिले में तमाम ने अपने अपने पब्लिक मीटिंग्स को कैंसल कर दिया है। कोई पब्लिक मीटिंग शब मेराज की नहीं होगी और सब उलेमा ने, मुफ्तियों ने कहा है कि फ्राइडे प्रेयर्स के लिए भी बहुत शॉर्टन फ्राइडे प्रेयर्स होगा, छोटा सा जो खुतबा होगा, और लोगों से अपील भी कर रहे कि आप एबोल्यूशन वजू अपने घर से करके आइए और सुन्नत भी पढ़ के वहीं से आइए। और तीसरा, शादी खानों के सिलसिले में हमने सीएम से कहा कि उसमें भी सीएम ने कहा कि उसको लिमिट कर देंगे और जो भी मैरिज होगा उनको कंसर्न पुलिस से इत्तला देकर एक टाइम रखना पड़ेगा, ज्यादा गैदरिंग नहीं होना चाहिए। हम अपील कर रहे हैं कि गैदरिंग कम से कम हो ताकि ये इन्फेक्शन कोविड-19 का उसको रोका जा सके और हम गवर्नमेंट के साथ हैं। ये एक बहुत बड़ा नेशनल कैलामिटी भी बन सकता है और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की आवाम इसको एक्सेप्ट करेगी और हम सब मिलकर इसको रोकेंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।